أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. I hope so that you are fine and in the best state of Iman. I'm also fine, Alhamdulillah. So let's start our session. Today, there is a short tragedy for me because my PowerPoint slide is not opening. I don't know why. So today we can, better revise the previous things and do some question answers with you guys as you participated. You didn't participate, but you were still in the sessions previously which I was giving to you guys. So yes, I will ask you questions regarding that, and you have to give me the answer, and we will also learn about little bit more about the Babylonian politics or that region's politics. So yes, without wasting any further moment, I would start my session by the question answers. And you know I will ask you guys. Let me ask you guys. Number one, where did I start actually my sessions? Can anybody let me know? From Sira. Yes. What is Sirah? And who is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Well, actually, let me revise again. Sirah, is anybody's biography. Like Sirah of Hazrat Abu Bakr Siddiq, Sirah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But in this case, we were learning about the most noble person who stepped on earth, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. His seerah, we were learning about that. So yes, we had to know about him. Now, what was his name? Prophet Muhammad. So anybody who listens this name, so he will better ask, who is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? So yes, he was a holy prophet. He was a holy prophet, and he was the final messenger of Allah, sent on earth. Okay, and as well other things as well. 1 minute. Yes, so we discussed about Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, about his ethical and moral values and different type of other things, his role in the society, how did he get the revelation. So yes, these are the things. I hope so you remembered all of that. So, dear brothers and sisters and the elderly, after that, we started our topic. Our first topic was about Prophet Ibrahim alayhi salam. Who is Prophet Ibrahim alayhi salam? Can anybody tell me? In which era was he born? Yes, it's a very simple and proper question. In which era was he born? Okay, let me tell you guys. He was born in an era where his region was known as Mesopotamia in the Middle East. This area is located in Iran and Iraq. And he was born in an era where the societies worshipped the idol. The kings said that they were the gods and different other things. They made people worship them. Okay, so these were the things. This was the era in which they were. And now, after that, we learn about the journey of hardship and how was he prepared for all of this, and how did he go to find Prophet Allah subhanahu wa ta'ala. How did he get the hatred for idols? So, can anybody let me know how did his journey start? How did his journey to find Allah start? He used to travel. वो जाते थे, रेगिस्तान में जाते थे, आइसोलेशन में जाते थे और वहां पे जाके गौर व फिक्र करते थे बहुत ही ज्यादा. Yes, this is, yes. But, different other things are there as well, such as, he, from the start, from when he was small, he, used to play with the idols which his father made.
and he thought that these idols are toys. And later on he got to know that the same things who were made by people, they they the people used to worship those same things who they made themselves. यानी वो आइडल्स को बनाते थे और उन्हीं को पूजते थे, उन्हीं के ऊपर सजदा करते थे, ये बोल के कि वो गॉड है। अब ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, ये तो अजीब फजूल चीज है। तो जो है ना, ये चीज़ उनके माइंड में हज़म नहीं होती थी। वो कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है? वो बाबा से भी बात करते थे अपने, लेकिन उनको सही से आंसरिंग क्वेश्चन की आंसरिंग नहीं दी जाती थी। तो इसलिए उनका हेट्रेड बढ़ता चला गया इन आइडल से, और एक दिन उनको जुस्तजू हुई कि वो असली गॉड को तलाश करें। और वो जब इस चीज़ के लिए निकल खड़े हुए, तो बाद में उनको उनके ऊपर रेवलेशन कैसे आई, उनके ऊपर ऐसे रेवलेशन आई कि जब वो अपनी जर्नी में थे, जब उन्होंने देख लिया था, उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी से ये डिस्कवर कर लिया था कि सन भी नहीं है गॉड, मून भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, कुछ भी गॉड नहीं है। तो फिर इनके ऊपर रेवलेशन आई थी, फिर इनकी जर्नी ऑफ हार्डशिप स्टार्ट हुई थी। अब आप मुझे ये बताएँ कि जर्नी ऑफ हार्डशिप जब इनकी स्टार्ट हुई थी, तो उसकी शुरुआत में क्या हुआ था? यानी जब वो घर चले गए थे, फिर इन्होंने क्या किया? कोई बता सकता है? मतलब आप उनकी हिजरत की बात कर रहे हैं या उससे पहले की बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं, जब उनकी जर्नी ऑफ हार्डशिप स्टार्ट हो गई थी, जर्नी ऑफ हार्डशिप क्या चीज़ है? यानी जब अल्लाह ताला ने उनको मतलब रिवलेशन दे दी थी, तो वहाँ से उनकी थोड़ी-सी मतलब टेस्ट और ट्रायल स्टार्ट हो गए थे ना। यानी उनको हर जगह से इख्तिलाफ़, उनके ऊपर गलत-गलत चीज़ें, लोगों ने उनको गलत-गलत कहा, बुरा-भला कहा, उनको शायद से मारा भी हो, और वो फिर फायर में भी फेंका। ये जो जर्नी ऑफ हार्डशिप थी ना, जिससे गुज़र के गए थे, तो ये अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत में क्या हुआ? ये बताएँ। यानी उनको रेवलेशन मिल गई, उसके बाद क्या हुआ? वेल, इसका आंसर ये है कि वो जब वापस घर गए, तो उन्होंने सबसे पहले अपने फैमिली से स्टार्ट किया, यानी अपने बाबा से। तो उनको वहाँ से बड़ा इख्तिलाफ़ हुआ, यानी जो है उनके बाबा ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? इस तरीके की सारी बातें की, और फिर उनको इवेंचुअली घर से निकाल दिया। फिर उनको मार्केट में भी उनसे मतलब बहुत ज़्यादा मुखालिफ उनके लोग खड़े हुए, जब उन्होंने ये बताया सबको। तो लोगों ने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये और वो, इस तरीके की चीज़ें। फिर उसके बाद उन्होंने जो है कुछ भी नहीं किया, फिर अल्लाह ताला से दुआ की, फिर उसके अलावा उन्होंने आइडल्स को तोड़ा, तो फिर मिरेकल ऑफ अल्लाह हुआ, मतलब यही कि उनको फायर में फेंका गया। तो मतलब फायर कुछ भी उनका बिगाड़ ना पाई। फिर उसके बाद नमरूद से उनका टेस्ट और ट्रायल हुआ। फिर उसके बाद वो इजिप्ट रवाना हो गए थे बाद में, और इजिप्ट में भी उनका ज़रा सा शॉर्ट सा टेस्ट और ट्रायल हुआ, फिर केनान वो शिफ्ट हो गए थे। ये उनकी मैंने ब्रीफ हिस्ट्री बताई है वैसे तो आई होप सो आपको समझ आया हो। तो हमने ऐसे ही यही हुआ सब था। कुछ डिस्कस किया था, तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं। अगर तो मैं आपको बताऊँ, तो हमने शॉर्टली अगर ब्रीफली बताऊँ ना, तो सबसे पहले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना अपनी कम्युनिटी यानी अपने माशरे को फेस किया था, फिर जाके कहीं वो नमरूद से मतलब नमरूद ने उनको चैलेंज दिया, और नमरूद से फिर उनका फेस टू फेस हुआ सब कुछ, जो भी हुआ। फिर वो मतलब अल्लाह ताला ने उनको हर तरीके से मतलब सब मतलब हर तरीके से वो हर चीज़ करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो जो लोग थे ना, उनके बहुत ज़्यादा उनको बता दिया गया था सब कुछ, और फिर एक ही चीज़ पे अटल रहते थे हमेशा, तभी उनको फिर फायर में भी फेंक दिया गया था। और फिर फायर, अगर आपने ये देखा हो ना, आप लोग हैरान होते होंगे जैसे मैं होता था पहले बड़ा, कि भाई फायर से कौन बच के आता है, फायर से इतना बड़ा मिरेकल, और उसके बाद ये रद्द-ए-अमल मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं नहीं ये तो कोई जादूगर है, और इसने तो कोई जादू किया है अपने आप को बचाने के लिए। और ये जादू से भी बढ़ के है बल्कि तो। जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैं पहले सोचता था, जितनी मेरी क्यूरियोसिटी होती थी कि लोग कैसे कह देते हैं कि ये जादू, मतलब वो जो उस वक़्त के लोग थे।
और उन्होंने बिलीव नहीं किया था इस बात पे। तो यस, ये है सारी चीज़ें। उसके अलावा फिर नमरूद ने भी इस बात पे बिलीव नहीं किया था। तो इसलिए इसकी वजह मैं ये सोचता हूँ, इसलिए क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे ना, उनको बस एक चीज़ बता दी गई थी कि ये आपके खुदा है, इन्हीं को मानना है, वरना ये आपको तबाह कर देगा, यानी आप मर जाओगे, इनके गजब का शिकार हो जाओगे। इस तरीके की मतलब उनके जो बड़े लोग होते थे वो बात करते थे। और फिर अगर तो आपने देखा हो ना, एक और चीज चलती आई है जिसको मैं ट्रेंड कहना चाहूंगा, जो अब तो नहीं होता, पहले होता था कि पुराने जमाने में ना आमून और काहीन, ये लोग होते थे जो अपने आप को अस्तगफिरुल्लाह व नतूबु इलैह, ये लोग अपने आप को कहते थे कि हम खुदा के मतलब हम खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, आप लोगों के रहनुमा हैं। और वो पैसे बहुत तोड़ते थे, लोगों से पैसे लेते थे खुदा के नाम पे। और जो है ना मतलब इतने वो अपने उससे गिरे हुए थे लेवल से कि वो खाना फ्री में लेते थे, और वो भी 20-20 लोगों का एक बंदा खाता था। और वो जो है मतलब, ये अगर दौर की एग्जांपल दी जाए तो ये हमारे पास वो सॉरी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर में बहुत ज़्यादा था इजिप्ट में। उसके अलावा ये बहुत पहले से शुरू से होता आ रही है कि जो काहीन और आमून ये लोग होते थे, ये जो है ना लोगों से ना मतलब नाजायज़ तरीके से हर चीज़ लेते थे, और फिर इनको लेने भी दिया जाता था। जो उस वक़्त की अथॉरिटी होती थी वो कुछ कहती भी नहीं थी, वो कहती थी नहीं कोई बात नहीं, लेने दो। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी डिस्कस करें आपस में भी एक साथ भी, अभी तक जितना भी लर्न किए है उसमें आपने अभी तक कितने कोई क्वेश्चन भी नहीं किए, ना कोई डिस्कशन की, ना किसी ने पॉइंट्स रेज किए, ना कुछ और। तो किसी ने भी नहीं किया। तो आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट। एक्चुअली सारा ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का को आग में झोंकने वाला वाकया था, इसमें जो इन्होंने जादू के बारे में बात की थी वो इस वजह से की थी कि वहाँ पे उस टाइम पर जादू बहुत ज़्यादा कॉमन था, एक्सट्रीम कॉमन था। तो इसीलिए हर सहाबा को और हर प्रॉफिट को एक जादू या नजूमी इस तरीके की बातें ज़रूर सुनी गई हैं, हाँ, ये बात क्योंकि सही है उस आपकी। लेकिन मुझे इन्होंने एक चीज नोटिस करी है जो अभी तक मुझे समझ नहीं आई, तो शायद आपको शायद सही से समझ आती हो। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि उस वक्त अभी आप कह रही है ना कि नजूमी और शायर और इस तरीके के लोग तो थे बहुत ज्यादा, विजर्ड्स भी थे, जो मतलब वो होते हैं ना जादूगर। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि सिर्फ सहाबा और सिर्फ प्रॉफिट्स को ही क्यों जादूगर कहा जाता था फिर। मतलब जो असली जादूगर होते थे वो भी तो बहुत बड़े बड़े काम करते थे, तो उनको क्यों नहीं कहा जाता था जादूगर। नहीं, उनको तो देखें ना, देखें ये कितना बड़ा एक मिरेकल है कि किसी को आग में झोंका गया और उस आग ने सिर्फ और सिर्फ रस्सी जलाई और बाकी एक बाल तक नहीं हार्म कर सका। तो वो लोग जो पूरे लिहाज से सोचते हैं कि अगर कोई सी भी चीज थोड़ी सी भी 19-20 आगे पीछे हो रही है तो वो जादू है, तो वो तो इसको डेफिनेटली जादू समझेंगे ना कि ये तो जादू ही है। जैसे मैं आपको अभी इस वक्त अगर हमारी प्रेजेंट मिसाल दूं, तो अगर पीछे से कहीं आहट की आवाज आए तो आपके दिमाग में सबसे पहला आएगा कि यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, क्योंकि वो हमारा दिमाग उस रडार पे सेट हुआ हुआ है। तो इस तरीके से उधर के लोगों का दिमाग, उस वक्त के लोगों का दिमाग जादू पे बहुत ज्यादा सेट था कि अगर कोई सी भी चीज 19-20 आगे पीछे हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई थी, मतलब उन्होंने ख्वाब की ताबीर नहीं बताई थी, उन्होंने प्रोडिक्शन दी थी। तो उसको वहां पे जो कैदी था, जो उनके अगेंस्ट था, उसने भी उनको यही कहा था कि ये जादूगर है। फिर उसके बाद उसने उसकी प्रोटेक्शन दी थी कि तुम्हें जो है वो 3 दिन बाद रिहा कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं आ, जी। मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, जो आपने कहा ना कि जो बाकी जादूगर भी होते थे, लोग उनको क्यों जादूगर या क्यों नहीं समझते। यदि आपकी आवाज जादूगर बहुत थे वो, कट रही है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। अब आ रही है? जी अब आ रही है। ठीक है। आपने जो पूछा था ना कि जो ऐसे अब भी बहुत ज्यादा क्यों नहीं, कट रही है। क्या सबको आवाज आ रही है कि मेरी तरफ से ये इशू।
कंफर्म अगर करते हैं तो फिर मैं आगे आपकी आवाज आ रही है, वलीद भाई की आवाज कट रही है। की जी आवाज मैं कट भी रही यही कह रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत कट रही है। या तो आप ये राइट करके भेज दें, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे सिग्नल बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहे हो। बैठा तो मैं डिवाइस के पास ही हूँ, पता नहीं क्या इशू है। थोड़ी बहुत अब सही आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? जी अब आ रही है। ठीक है, तो आप आगे नहीं, आपकी आवाज अब भी नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाई। आप चैट पे लिख के सेंड कर दें या तो। ओके, सो और किसी के पास कोई पॉइंट है? अच्छा, अम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आगे चीज़ें। फिर हमने मतलब जो है अभी हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, मतलब हमने पढ़ भी ली है। अभी सिर्फ हमने बेबीलोन की पढ़ी है, इस रीजन की। फिर उसके बाद हम लोग ना मतलब ट्रेवल्स ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखेंगे, जिसमें उन्होंने पहले इजिप्ट ट्रैवल किया, फिर इजिप्शियन पॉलिटिक्स देखेंगे उस वक्त के दौर की। फिर उसके बाद हम लोग केनान की देखेंगे सब कुछ। फिर उनकी मैरिज वगैरह भी देखेंगे। फिर उनके सन इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी देखेंगे। फिर मक्का, बैरन डेजर्ट्स ऑफ मक्का के बारे में लर्न करना है। फिर उसके बाद और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी आगे। तो मतलब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी पॉलिटिक्स ऑफ नमरूद के बारे में। तो मैंने जैसे आप लोगों को ये बताया था कि बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं, मतलब दूसरों और किंग्स पर भी, कि वो जिस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करें। जैसे कि कुरैश के जो सरदार अबू जहल था ना, मैंने उसकी पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, और मुझे बहुत ज़्यादा पता चला है कि वो कहता था अपने जो लोग थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, अस्तगफिरुल्लाह, वो ये सब कुछ ना ऐसे ही कर रहे हैं, वो सरदारी चाहते हैं। और जो है ना, उसको डर था अबू जहल को कि उसकी सरदारी ना कहीं चली जाए। इसी वजह से ना उसने ये सारी साजिशें वगैरह बनाई थी हमारे पर नबी के लिए, और ये इस तरीके के प्लान्स बनाए थे उनको मारने के लिए, कि कहीं मतलब बनु हाशिम कबीला उनसे आगे ना निकल जाए, बनु मखजूम से। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है हमारी हिस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस तरीके की, जहाँ पे किंग्स जो है ना कभी भी नहीं चाहते कि दूसरे किंग्स उनके खिलाफ उठें। अगर उठते भी हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब इस तरीके से दिया जाता है कि उनकी जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, वो उसको सजा मौत दे दी जाती है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है उसका। ये हमारी रिवीजन थी आज की, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड एल्डरली। अब हम जो है ना कल थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे नमरूद के बारे में, और फिर उसके बाद उसकी पनिशमेंट के बारे में। फिर हम लोग चलेंगे फॉर ट्रेवल्स ऑफ इजिप्ट। यहीं पर हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर हम लोग रैप अप करते हैं। ओके, आई डोंट थिंक सो। एक सेकेंड सरार, आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे मेरा कॉल आ गई थी तो मेरी वो कट गई थी। मैं आपसे सिर्फ ये बात करी थी कि मैंने आपसे उससे ये कहा था कि उस टाइम पर जो हम लोग जादू की बात कर रहे थे ना, जादूगर और जादूगर की, तो ये लोग इतने ज्यादा उस टाइम पर वाइड स्प्रेड थे कि हर किसी को यही लगता था छुपते ही कि जो कुछ भी अगर ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं तो वो ये जादू कर रहे हैं। और उस टाइम पर जो जादू लोग अमल करते थे ना, वो कुछ अच्छा नहीं करते थे। इसीलिए जिस भी नबी या जिस भी प्रॉफिट ने ये चीज सुनी कि उनको जादूगर से मिलाया जा रहा है या उनको जादूगर का लकब दिया जा रहा है, तो उनको गुस्सा आता था कि हम जादूगर नहीं है, खुदा ना खास्ता, मतलब हम वो अमल नहीं करते। और जादू में अमूमन अमल गलत ही आता था। जादू एक सेपरेट चीज है ना। जादू किससे होता है? शैतानी चीजों से। मतलब वो अगर आपने सुना हो
कि वो मतलब जो है उनके पास स्टिक्स होती हैं और उनके पास स्कल्स वगैरह होती हैं और बोन्स वगैरह होती हैं और वो कोई मिक्सचर विक्सचर भी बना रहे होते हैं और वो मतलब इस तरीके से अलग अलग स्टूपिड टाइप के जो है ना मतलब चीज़ें पढ़ पढ़ के वो जादू करते हैं। तो मतलब ये जादू है ना, तो जाहिर है फिर ये गलत बात थी फिर, तभी उन प्रॉफिट्स को भी गुस्सा आता था। आई थिंक सो दिस इज राइट। सो यस, ये आपने अच्छा पॉइंट शेयर किया, तो हम यही रैप अप करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड अल्लाह सिस्टर्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।